وعن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي. یہ باب التقویٰ کی آخری حدیث ہے. اس کے بعد ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوگا یقین اور توکل کا، اور یہ تقویٰ کا آخری باب، آخری حدیث تقوی کرتا ہے. ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کب؟ فرمایا کہ حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر. کیا فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وأدوا زکاة اموالکم، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور آخر چیز فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کیا کرو جب تک کہ وہ کسی گناہ کے کام کا، کفر و شرک کا حکم نہ دے. اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تدخلوا جنت ربکم، اور سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اس روایت کے راوی جو اس روایت کو نریٹ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں، ابو امامہ باہلی. ابو امامہ ان کی کنیت ہے. ان کا نام اصل سدی تھا، ان کا نام سدی صوت کے ساتھ، اور والد کا نام عجلان تھا، سدی بن عجلان. اور اونچے درجے کے صحابی ہیں. غزوہ حدیبیہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے. صلح حدیبیہ کے وقت یہ بھی موجود تھے. جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بیعت رضوان کا ذکر کیا گیا. اس میں بیعت رضوان، ہجرت کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ مدینہ پاک چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے. تو کافی عرصہ ہو گیا تھا کعبۃ اللہ کو چھوڑے ہوئے. اب ان کو کعبۃ اللہ کی یاد ستا رہی تھی. چاہتے تھے کہ جائے اور کعبۃ اللہ کو دیکھے، تو کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، اس کا طواف کرے، عمرہ کرے. تو سن ہجری 5-6 کے اندر، ہجرت کے 5 سال کے بعد، یہ ابھی کعبۃ اللہ کو دیکھے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے. جن لوگوں کا ہر سال کعبۃ اللہ عمرے جانے کا معمول تھا، وہ جو ہر سال جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور اسباب بھی دیے ہیں، تو 2 سال ایسے گزرے کہ وہ نہیں دیکھ سکے. تو ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ بھائی کیا کروں. وہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی جو تمنا ہوتی ہے، جو زیارت ہوتی ہے، جو امنگ ہوتی ہے، جو تمنائیں ہوتی ہے، وہی انسان بیان کر سکتا ہے جس نے 2 سال سے کعبۃ اللہ 3 سال سے نہ دیکھا. تو یہاں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پورا
ایسے لوگ جو 5 سال تک کعبہ نہ دیکھیں گے تو ان کی کیا جذبات ہوں گے میں نہیں کر سکتا. تو 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد یہ لوگ کہا کہ چلو بھائی عمرہ کرنے کے لیے جائے کب اللہ کے. اب چونکہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے ہجرت کر کے جانے کی وجہ سے واپسی کی اجازت نہیں تھی آپ نہیں جا سکتے. تو یہ لوگ مکہ المکرمہ کے باہر ٹھہر گئے صحابہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری ٹیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کیونکہ حضرت عثمان جو تھے بہت بڑے مرچنٹ اور ٹریڈر تھے تاجر تھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی دشمن اور دوست ہر ایک کے ساتھ ان کو عزت کے مقام سے دیکھے جاتے ہیں. میڈل مین جو ہوتے ہیں بعض لوگ کہ ان کا کسی سے کوئی یہ نہیں ہوتا. حضرت عثمان بھی ایسی شخصیت تھی کہ وہ مشرکین کے یہاں بھی کیا سمجھے جاتے تھے معزز سمجھے جاتے تھے. صاحب مال تھے تاجر تھے بہت بڑے مشرکین سے ان کی تجارت ہوتی تھی. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مشرکین کو بتاؤ کہ ہم لوگ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر ہم لوگ کسی جنگ کرنے کے کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں. ہمارا واحد مقصد عمرہ کرنا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت ہے اور واپس چلے جائیں. انہوں نے روک لیا ہے کہ نہیں آ سکتے اس سال نہیں آ سکتے. نبی کو منع کرنے کی اس سال ہم کو داخل نہیں ہونے واپس اگلے سال آ سکتے. اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی جی میں آگے بھی اس کو بیان کر کے آیا. بہت ساری شرطیں رکھی گئی تھی اس وقت اور وہ ساری شرطیں جو تھی اگر آپ اس کو غور سے دیں گے تو سارے مسلمانوں کے خلاف. اس کو صلح حدیبیہ کہا ہے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. ٹریٹی ہوئی تھی وہاں کیا بھائی اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں آنے دیں گے آئندہ سال آنا پڑے گا. آئندہ سال آئیں گے اور بہت ساری چیزیں جس کے ان کے اگر ہمارا کوئی آدمی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے تو مدینہ سے اس کو واپس بھیجنا پڑے گا یعنی آپ اس کو کیپ نہیں کر سکتے. ہاں آپ کا کوئی آدمی آ گیا مدینہ سے مکہ کی طرف تو ہم واپس نہیں کریں گے. ایسی ساری شرطیں اس کے اندر رکھی گئی تھی لیکن پھر بھی نبی نے ساری شرطیں مان لی. حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے پیلے ہو رہے کہتے ہیں اللہ کے حبیب ہم حق پر نہیں ہیں ہم جب حق کے اوپر ہے تو یہ ساری شرطیں جو ہے کنڈیشن سے ہمارے اگینسٹ ہے پھر بھی آپ کیوں مان رہے ہیں. لیکن نبی جو نبی ہوتا ہے ہر فیلڈ کا نبی ہوتا ہے. نبی جو دیکھتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے اس کے اوپر باقاعدہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی جو پولیٹیکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو برین تھا پولیٹیکل تھنکنگ تھی اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی. اس کے اوپر سب سے نمایاں کام ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے کیا ہے. حیدرآباد ڈیکن کے رہنے والے تھے. انہوں نے سیرت کے اوپر پی ایچ ڈی کی. انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کے پاس. بہت سال انہوں نے جرمنی میں بھی یہ کیا وہ فرانس کے اندر بھی رہے تھے. ان کی ساری کتابیں انگلش عربک فرینچ کے اندر ہوا کرتی تھی. ابھی اس کا ترجمہ اردو کے اندر بھی ہوا ہے. انگلش کے اندر کافی کتابیں موجود ہیں ان کی سیرت کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پولیٹیکل جو ڈیسیزن لیے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اس ڈیسیزن کی کیا ضرورت تھی تو اس کے پیچھے انہوں نے اس کے بہت سارے وجوہات بیان کی تھی کہ بھائی اس میں اس کے پیچھے کیا کیا راز تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کے لیے بھیجا تھا وہاں پر کہ بھائی ہم عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں پکڑ کے رکھا یعنی حضرت عثمان کو آفر کیا اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو ان کو نہیں آنے دیں. عثمان نے کہا کہ میں نبی کے ساتھ آیا ہوں میں اکیلا طواف نہیں کروں گا. میں طواف کروں گا تو نبی کے ساتھ ہی کروں گا. اب چونکہ حضرت عثمان کو آنے میں دیر ہوگی تو وہاں پر مسلمانوں کی جو عالمی تھی وہاں پر یہ رومرز ہو گئے وہاں پر یہ افواہ پھیل گئی. کیا پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. وہ اصل کا زمانہ نہیں تھا ابھی بھی رومرز ہوتے تھے وہاں پر. بعد کے زمانے میں اگر رومرز ہو جائیں تو بڑی بات نہیں ہے لیکن زندہ کو بھی مار
देते हैं कि हमारे गांव के अंदर एक मोहसिन साहब थे, तो वैसे बात जरूर ऐसे होते हैं कि मोहसिन साहब होते हैं सबसे मजलूम होते हैं, लेकिन वहाँ पर बात मोहसिन ऐसे होते हैं कि बेचारे उनके बहुत से गांव के अंदर आज भी ये रवाज है कि जहाँ मोहसिन होते हैं तो उनका खाना सारे गांव में, यानी वो बेचारे वो अपनी बकेट लेके घूमते हैं, हर घर से उनको थोड़ा थोड़ा खाना मिल जाता है तो अपना गुजारा चला ले जाते हैं। तो हमारे वो उनको परेशान करते रहते थे, मोहसिन साहब थे, वो बड़े मियाँ थे, बड़ी उम्र के थे, उनको छेड़ते रहते थे। तो वो उनको कहते थे कि जो तू मेरे साथ मुझे परेशान करता है, मैं सारे लोगों की मौत की खबर माइक से बयान करता हूँ, अगर तू मुझे परेशान करता रहेगा तो मैं तेरी खबर वैसे भी तो ऐसे ही मतलब उनको छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो फतेह के बाद मुझे उनकी मौत का ऐलान कर दिया, हालांकि वो मस्जिद में बैठे हुए थे, हम तो डरा नहीं लेके। तो उस जमाने में ऐसे रूमर्स थे हज़रत उस्मान की मौत, शहादत की मौत की, यानी उनकी मौत की खबर फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। तो उस वक्त हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जो बैअत ली थी, जो प्रॉमिस ली थी, उसको बैअत रिज़वान कहा जाता है। बैअत रिज़वान इसलिए कहते हैं कि उस बैअत के ऊपर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा, सारे सहाबा ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, क्या कि हज़रत उस्मान को जो शहीद किया गया है हम उसका बदला लेंगे, हज़रत उस्मान को जो शहीद किया गया उसका बदला लेंगे। अब हज़रत उस्मान तो नहीं थे, तो सारे सहाबा ने अपना हाथ रखा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की तरफ से अपना हाथ रखा कि मैं हज़रत उस्मान की तरफ से मैं बैअत करता हूँ, उस्मान की तरफ से। तो उस बैअत के ऊपर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला उस जमात से राजी हो गए। तो अल्लाह ने उस बैअत के ऊपर, उस प्रॉमिस के ऊपर अपनी रजामंदी के लिए जो मुसलमानों को जो मुद्दा और खुशखबरी सुनाई, उस एतबार से उसको क्या कहा जाता है, बैअत रिज़वान। तो ये अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहां पर थे। तो उन्होंने जब ये आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के हबीब उस बैअत के अंदर मैं भी था, उस बैअत के अंदर मैं भी था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तो अंत मिन्नी व अन्ना, कि तुम मुझसे हो और मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा। ये जो सहाबी है हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला, सुलैम उनका नाम है, और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तकरीबन 250 रिवायत हदीस वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करते हैं। और ये वो सहाबी हैं कि शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, जिसका सबसे अखीर के अंदर, यानी वो आखिरी और लास्ट सहाबी है कि जिनका इंतकाल शाम के अंदर हुआ, उसके बाद कोई सहाबी शाम के अंदर बाकी नहीं रहा, बहुत मुक़द्दस जिंदगी। क्या अबू उमामा बाहिली, इनकी फजीलत में आता है कि वो अपनी कौम को दावत देने के लिए गए, पहले मुसलमान हुए थे, तो अपनी कौम के पास, अपने ट्राइब के पास वो दावत के लिए गए कि भाई मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं तुमको दावत की तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए आया हूँ। तो उनको देखा कि वो कोई हराम काम के अंदर मशगूल थे, कोई हराम ग़िज़ा खा रहे थे। उन्होंने इनको रोका कि भाई ये हराम चीज़ है, उसको नहीं खा सकती। इन्होंने इनको भी ऑफर किया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, और किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो वहां से चल दिए भूखे पेट, न खाना न पानी, कुछ भी नहीं था। रास्ते में भूख की वजह से निराश हो गए, कमजोर हो गए और सो गए। अब जब वो वहां से चले हैं तो उनके ट्राइब वालों ने एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया, एक दूसरे को ये कहना शुरू कर दिया कि तुम कैसे लोग हो, तुम्हारे कौम का सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान है, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है, तुमने उनको खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, और दिया वो भी हराम ग़िज़ा तुमने उसके सामने पेश की, वो वैसे ही भूखा चला गया। तो कुछ लोग खाना लेकर उनकी तलाश में निकले कि चलो भाई उनको तलाश करो, उनको खाना पानी वगैरह दो उनको। तो उनको तलाश करते हुए देखा, वो वहाँ मिले हैं, उनको उठाया, कहा कि हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए। तो कहने लगे कि मैं जब सोया हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ख्वाब के अंदर ही सैराब कर दिया, मुझे खिला दिया और पिला दिया, और मैं यानी इस हाल में उठे कि उनका पेट भरा हुआ था। ये वो साहबी अबू उमामा बाहिली थे। दो कॉल मिलते हैं इनकी इंतकाल के बारे में। बाज़ लोगों ने कहा कि उन्होंने 91-92 ईयर्स की उम्र पाई,
और बातों में लिखा है कि इनका इंतकाल 106 की उम्र में 106 साल की उम्र में हुआ। अब उमामा भाई के लिए और ये तबलीग वगैरह के अंदर बहुत ही हर जगह खैरात के अंदर बहुत ही मशहूर थे, बहुत ही खैरात करते थे। यहाँ तक कि अगर कुछ भी होता था तो प्यास दे देते किसी को, इतना उनको खैरात करने का शौक था, तो इतना लोगों की मदद करने का इनको शौक था। अगर कुछ नहीं होता तो प्यास ही देते थे कि भाई इसी को खा। ये थे वो उमामा भाई। और बहुत ही रोजे रखते थे, दावत और तबलीग के अंदर बहुत ही एक्टिव थे। हर किसी के पास बैठ जाते थे और किसी को शरीर की कोई चीज़ें सिखा देते थे, पूछ लेते थे, उससे मुज़ाकरा करते थे, बात करते थे और सीखने सिखाने के अंदर बहुत ही रहते। तो ये रिवायत इनकी है, सुदैब बिन अजलान की। उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल विदा में सुना। हज्जतुल विदा यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी फाविल हज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? तो सराहतन रिवायत के अंदर उसका कोई काउंट नहीं मिलता है, लेकिन गालिब गुमान यही है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो हर साल आप अलैहिस्सलाम ने हज किया होगा। क्यों? सराहतन कहीं नहीं मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने हज किए, लेकिन ये बात पक्की है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा हिजरत करके चले गए हैं, उसके बाद ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट है। यानी मदीना जाने के बाद एक ही हज किया। मक्का में जब तक रहे कितने हज किए वो मालूम नहीं। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो तो मक्का के अंदर ही रहते थे, तो हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया होगा। क्योंकि हम देखते हैं तो जहाँ से हज का ज़माना ऐसा होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के काम में बहुत एक्टिव हो जाते। क्यों एक्टिव हो जाते थे? क्योंकि हज के लिए बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोग, ये बेस्ट टाइम होता था कि उनको अप्रोच करें, उन्हें दीन की बात सिखाएं, उनका कलीमा सुने, शरीयत के बारे में बताएं, इस्लाम के बारे में बताएं, नबूवत के बारे में बताएं। ये सारी चीजें होती थी उस जमाने में। और आपने सल्लल्लाहु का हिजरत का जो प्रोग्राम बना था तो उसी हज के ज़माने में बना। जब मदीना से कुछ लोग हज करने के लिए आए थे, वहाँ पर उन्होंने नबी को दावत दी थी कि आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। और हज्जतुल वदा आखिरी हज था। और भाई इंसान का जब इंसान अपने घर से निकलता है, ठीक है ना, गाड़ी में बैठ जाता है, तो लास्ट के अंदर में इंसान जो चीज़ें चेक करेगा वो क्या होगा? सबसे अहम होगा। भाई इंसान हिंदुस्तान पाकिस्तान जा रहा है तो अपने घर के अंदर देखेगा कि कोई लाइट तो नहीं भूल गई, गाड़ी में बैठने के बाद पर्स खोल के देखेगा पासपोर्ट तो है कि नहीं। यानी इंसान का जो लास्ट चीज़ जो इंसान चेक करता है वो चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा अहम होती है। उसके भूलने की वजह से इंसान को बहुत बड़ा नुकसान और लॉस क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ सकता है। बगैर पासपोर्ट के एयरपोर्ट पर चले गए तो क्या होगा? वापस आना पड़ेगा। तो ये हज्जतुल वदा है। हज्जतुल वदा के ऊपर बाकायदा मुस्तकिल किताबें लिखी गई है। तो उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फारूक खुतबा था, बहुत लंबा खुतबा था। तो इंसान जब दुनिया से जा रहा हो, उसको पता है कि मेरा आखिरी हज है, मैं अपने फॉलोवर्स को, अपने मानने वालों को जो चीज़ें देके जाऊंगा, तो उस खुतबे के अंदर जो चीज़ें बयान की जाएंगी वो चीज़ें क्या होंगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। यानी अगर इंसान उसके ऊपर एक्टिव नहीं हुआ, उसके ऊपर उसने अमल नहीं किया, अपनी जिंदगी में अमली जामा नहीं पहना है, तो इंसान का दुनियावी नुकसान और उखरवी नुकसान दोनों पक्का है। तो हज्जतुल वदा के अंदर और भी बहुत सारी चीजें बयान की गई। सबसे पहली चीज इत्तक़ुल्लाह, लंबा खुतबा है क्योंकि हदीस के अंदर जो चीजें वो बयान कर देता हूं। सबसे पहली वसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जो हज्जतुल विदा के अंदर जितने सुनने वाले लोग थे, तमाम सहाबा थे, कहा कि अल्लाह से डरते रहना। इस वजह से इस रिवायत को इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि लाए हैं, क्योंकि यहाँ उसको इत्तक़ुल्लाह है, अल्लाह से डरो। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो तक़वा का चल रहा है। दूसरी चीज मैंने फरमाई वसल्लु खम्सकुम, अपनी नमाजों के ऊपर पाबंदी करना, बल्कि सिर्फ हज्जतुल वदा के ऊपर नहीं, बल्कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्या हो रहे हैं, इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना हज़रत आयशा फरमाती है कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी वसीयत फरमा रहे थे कि भाई अपने मातहतों की,
कि जो तुम्हारी परवरिश के अंदर है, जो तुम्हारी नर्चरिंग के अंदर है, जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारे औलाद हो, तुम्हारे लोग चाइल्ड हो, कोई भी हो, तो कहा कि उनका तुम ख्याल रखना। और दूसरी चीज नमाज। दुनिया से इंसान जा रहा हो तो सबसे अहम चीज को बयान करेगा कि भाई इस चीज का खास ख्याल जा रहा है कि भाई अपने अपने मुल्क जा रहा है तो अपने बेटों को क्या कह के जाएगा, भाई गैस का बिल आएगा भूलना मत, काउंसिल का बिल आएगा तो भूलना मत। लेकिन ये यानी इम्पोर्टेंट चीजें बयान करके जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे नमाज का इंसान को देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में नमाज कितनी है, हमारी जिंदगी में नमाज और है तो फिर हम उस नमाज के अंदर कितनी तवज्जो देते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए भाई। ये बात उनका शैतान का धोखा होता है, क्या कहते भाई नमाज तो अभी दिल तो लगता नहीं कि नमाज पढ़ने से क्या है, नहीं, पहले रूटीन आता है नहीं, और फिर रूटीन के बाद इसके अंदर क्या आती है, जान आती है, क्या आती है इसके अंदर। तो ये शैतान का धोखा है, इसलिए इंसान को नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए कि भाई दिल नहीं लगता तो छोड़ दे, नहीं, पढ़ते रहो, काम करते रहो, क्या करते रहो, अपना काम करते रहो, छोड़ना नहीं। तो इंसान कोशिश करे कि हमारी जिंदगी में नमाज आए, तो सब लोग हम सम 5 वक्त की नमाज, और उसके बाद अपने माताओं की नमाजों की निगरानी इंसान करे, अपनी माताओं की नमाजों की निगरानी, अपनी बेटी हो, अपना बेटा हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि माँ हो या बाप हो, तो अपनी जवान लड़कियों की जो उनके जो मखसूस अय्याम होते हैं उनकी डेट उनको मालूम हो, ताकि उनकी नमाज की निगरानी कर सके, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। माँ की जिम्मेदारी है कि माँ उसका ख्याल रखे। लेकिन बहुत से मतलब ऐसा होता है कि घर के अंदर दोनों तरफ माहौल ही होता है, एक जगह माहौल होता है, दूसरी तरफ माहौल नहीं होता है, या बहन भाई की परवरिश के अंदर है तो उसका ख्याल रखे ताकि उनकी नमाज की निगरानी कर सके, समझा बुझाकर। और सबसे उसका आसान तरीका है कि इंसान खुद नमूना बने, खुद क्या बने भाई। दूसरी चीज मसूम मुशाह, अपने रोजों की हिफाजत, महीनों के अंदर रमजान के जो महीने। तीसरी चीज फरमाई कि वो तू ज़कात अम्वालिकुम, अपने मालों की ज़कात, अपने मालों की ज़कात, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा जो फितना निकला था वो ये निकला कि एक पूरे ग्रुप ने, एक पूरे कबीले ने, बाद लोगों ने क्या कर दिया था, ज़कात देने से इनकार कर दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे। क्यों ज़कात नहीं देंगे? क्योंकि भाई ज़कात तो नबी के साथ थी, नबी के साथ खास, जब नबी नहीं है तो ज़कात किसको देंगे? तो सबसे पहला फितना यही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग निकालते हैं, इसका एहतमाम करते हैं, लेकिन हम अपने एहतमाम करते हैं और बाद लोग अपने बच्चों की इतनी यानी उनके लिए इतने ज्यादा खैरख्वाह हो जाते हैं कि अपने बच्चों को भी निकाल देते हैं। तो अगर आप निकालेंगे तो वो कब सीखेंगे, वो कब सीखेंगे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये भी इस्लाम का एक फरीजा है? जिस तरह हमें ये मालूम हो कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, तो अपने बेटे और बेटियों के अकाउंट की भी हमको, जो हमारे माँ जाते हैं, हाँ शादी हो चुकी है तो उनकी अपनी बात है, वो शोहर के जिम्मे है, लेकिन वो आपके घर में है तो आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई मेरे बेटे के पास इतने पैसे, लेकिन इसलिए कि आप निगरानी कर सके कि बेटा इतने पैसे को वो ज़कात आएगी, उसे खुद करेंगे निकाल कितने पैसे निकाल, अहमियत देना है। अगर ये अहमियत नहीं होगी तो फिर ये जो तरबियत जो है ये नहीं सीखेंगे, पता भी नहीं होगा कि भाई ये ज़कात नाम की भी कोई चीज है। समझाएं, बताएं किसको दी जाती है, कैसे दी जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको। इसमें तो साइंस, रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर, सिर्फ वो होता है उनके पास कोई ऐसा कोई बड़ी रकम तो नहीं होती है, लेकिन बहुत से मतलब ऐसा होता है कि बात
आखिरी मरतबा कब अपने पेरेंट्स के साथ बैठ कर ओनली 5 मिनट बात की थी? 5 मिनट के लिए। 15-20 मिनट की बात छोड़ो, 5 मिनट बताओ मैं। यानी सिर्फ तुम वहां पर बैठे हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम बात कर रहे हो कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, आज आपका दिन कैसा था, हाउ वाज योर डे, अम्मी आपकी तबीयत कैसी है, आपका दिन कैसा था। बहुत ही अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, ये घर में रह रहे हैं और अम्मी नीचे से टेक्स्ट कर रही है कि खाना तैयार है। डिजिटल लाइफ, और ऊपर से बेटा टेक्स्ट कर रहा है नीचे, अम्मी को 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब वो 10 मिनट में बिल्कुल, और बाद में पता नीचे भी नहीं आ जाए हस्बैंड, वहीं अपने कमरे में क्या खाली हो गए। और हम भी इतने मोहताज हैं कि हमें ये भी नहीं पता है कि अपने औलाद के साथ बात क्या करना है। भाई एक जनरल कम्युनिकेशन होता है ना, कि एक तो चीज होती है कि भाई आज तुमने स्कूल में क्या किया, आज तुमने मदरसे में क्या किया, ये तो फॉर्मेलिटी है, ये तो क्या है। लेकिन उसके अलावा भी तो चीजें हैं ना, क्या उसके साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आपने आज कोई चीज जुमा के अंदर सुनी, बयान के अंदर आप बैठे हैं, 5 मिनट थोड़ा सा क्या कर लिया, मुज़ाकरा कर लिया, डिस्कस कर लिया कि भाई आज मैंने ये चीज सुनी थी। मैंने अपने वाले साहब को देखा, हमारे घर के अंदर सबको अखबार पढ़ने का बड़ा शौक। सुबह में 9 बजे वो अखबार डालने वाला आता है, यानी सब ऐसे बैठे होते हैं कि जिसको जैसे वो बिल्ली के सामने घोष का टुकड़ा डाला गया है, तो ये करते हैं। तो किसी के पास 2 पन्ने आ गए, किसी के पास 1 पन्ना आ गया, किसी के पास 1 पन्ना आ गया। तो असल में क्या होता था, मैंने अपने वाले साहब को देखा कि हमारे घर के अंदर सारे दीनी रिसाले आते थे। आजकल तो ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि डिजिटल जमाने के अंदर जी रहे हैं, तो सारी चीजें मोबाइल के अंदर, पीडीएफ के अंदर आ गई, तो ये चीजें खत्म हो रही है। तो वो सारे जो इस्लामिक रसायन जो लिटरेचर्स आते हैं, अलहमदुलिल्लाह हमारे घर के अंदर आते थे। तो मेरे वालिद साहब की आदत ये थी कि वो हर चीज पढ़ ली। आज भी उनका मामूल है, जितनी चीजें टेबल के ऊपर उनको सब पढ़ ली। और बाज अखबार के अंदर बात लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले होते हैं। मुझे याद है, मैं अपने जिस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर था, तो हमारे यहाँ बुध के दिन वेंसडे के अंदर एक सूरत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, डॉक्टर हिंदू थे, शशिकांत शाह उनका नाम। तो उनके जो ये आते थे बड़े अच्छे आते थे, तो मुझे उनकी चीजें पढ़ने का बड़ा शौक था। और मेरे पास मैंने अपनी एक फाइल बना के रखी थी, तो मैं उनके जो उसके अंदर जो टॉपिक आते थे और जो उनका जो मजमून होता था, मैं उसको क्या करता था, कटिंग करता था, अपनी फाइल के अंदर उसको सेव करता था। मैं जब यहाँ पर आ गया, तो मेरे वालिद साहब मेरे वो ड्रोवर्स वगैरह चेक कर रहे थे, उनको फाइल मिली, तो मुझे वहाँ से टेक्स्ट कर रहे हैं, मुझे पूछने कि भाई तुमने क्या चीजें जमा करके रखी है। और करना ये हुआ कि इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब की बड़ी तमन्ना थी कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन प्रोफेसर थे, बहुत अच्छी चीजें लिखते थे, वाकई में बहुत अच्छी चीजें लिखते थे वो। तो उन्होंने उनको खत लिखा, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि हालांकि मेरा बेटा जो है वो आलिम है, यानी वो किसी एजुकेशन लाइन से नहीं है, लेकिन वो आपकी जो टॉपिक जो आपके जो ये आते थे उसके अंदर उसको इससे पढ़ता था। तो मेरे वालिद साहब की क्या आदत थी कि अगर उन्होंने कोई चीज पढ़ी है, तो जब हम लोग खाने के लिए बैठते थे, तो खाने के दरमियान वो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते थे। और उनकी दूसरी अच्छी आदत ये थी कि हमारे घर में जितने भी इस्लामिक लिटरेचर्स आते थे, उसमें अगर कोई अहम चीज होती थी तो उसको क्या करते थे, अंडरलाइन कर देते थे, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। और आज भी उनकी आदत है, अभी भी वो वहाँ से कोई अगर अखबार के अंदर कोई अच्छा मजमून आ गया है तो वो भेजते हैं, उसके अंदर अंडरलाइन की होती है। यानी अगर तुम्हारे पास पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो तुम उसकी 5 लाइन पढ़ लेना, तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अब क्या होता था कि वो उसके अंदर अंडरलाइन लगे हुए हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब उनको कहेंगे 4 सफ़े पढ़ दो, कभी नहीं पढ़ेंगे। अब वो अंडरलाइन क्या होती है, आपने 4 लाइन पढ़ ली, यार चीज तो कोई दम वाली लग रही है, कोई चीज है पढ़ने जैसी। अब वो 4 लाइन इंसान क्या करेगा, 4 लाइन तो बीच की होती है ना, वो इंसान शुरू से पढ़ना शुरू करेगा।
तो पूरा पड़ेगा। इसी तरह हमारे यहाँ जो वोहरा वेलफेयर आता था उसके अंदर डॉक्टर हनीफ बना थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, संजय गांधी हम माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते है ना। संजय उनका अल्लाह ने जो कलम किया था उनका लिखने का जो अंदाज हाफ पेज लिखते हैं, लेकिन एट द एंड आपको कुछ लगेगा कि आई हैव लर्न समथिंग, मैंने कुछ सीखा आजकल। बात लोगों का लिखने का तरीका इस तरह होता है। तो इस तरह से चीजें होती थी। तो हम इसकी वजह से सारे लोगों को पढ़ने का शौक था, सारे विदेश से आते थे, और अगर आपने एक मजमून भी पढ़ लिया उसके अंदर कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती। तो चीजें होती है कि हम बात करने का तरीका सीखें। फिर देखेंगे आप ऐसी चीजों की बात करेंगे तो बच्चे खुद क्या करेंगे, आपसे सवाल करेंगे। लेकिन हमारी जो फॉर्मेलिटीज है जब तक उसको हम खत्म नहीं करेंगे, क्या खाया क्या पिया, उसके अलावा सीधा क्या कहते हैं वो शहर है कि सितारों के आगे जहां और भी, सितारों के आगे जहां और भी, यानी ये तो आपको तारे दिख रहे हैं ना, समझे कि यहाँ पर ये दुनिया खत्म हो जाएगी ना, दुनिया उसके आगे और भी। तो यही नहीं कि हमारी जिम्मेदारी उनको हम मेंटली भी क्या करें, डेवलप करें, उनके साथ बात करें। वो फरमाया कि अतु ज़कात अम्वाल, कि अपने मालों की ज़कात अदा किया करो। और चौथी चीज फरमाया वो अतीउ उमराकुम, अपने उमरा की इताअत करो। यानी एक आदमी को तुमने मुसल्लमा तौर पर अमीर तस्लीम कर लिया, तो शरी गाइडलाइन के अंदर जिसको तुमने अमीर चूज कर लिया, एक मतलब किसी का अमीर होना जाहिर कर दिया गया, तो फरमाया कि तुम उसकी बात को मानो, उसकी बात को क्या करो। फरमाया अगर तुम्हारे ऊपर किसी काले हबशी को भी अमीर बना दिया गया तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जब तक कि वो किसी गुनाह का हुक्म न दे, जब तक कि उससे कुफ्र और शिर्क की बातें उसके सामने जाहिर न हो। अमीर की बात मानी जाएगी, लेकिन अगर तुमको ये कहना है कि तुम तबलीग जमात में न जाओ तो फिर अमीर की बात मानी नहीं जाएगी। अमीर की इताअत जायज कामों में होगी, अमीर की इताअत नाजायज कामों के अंदर नहीं होगी ना भाई। जैसे कि सभी को पता है कि अभी क्या हो रहा है, कि बाकायदा इसका ऐलान किया गया और उसके अंदर उलमा को यूज किया गया, जान की पना कि अमीर की इताअत ऐसी कामों में नहीं की जाए। अमीर की इताअत फरमाया कि जायज कामों में, गुनाह के काम में अमीर की इताअत नहीं। क्यों भाई, क्यों इंसान तबलीग जमात साहब को क्या कर रहे हैं भाई, आपने सारी फहाशियों के दरवाजे खोल के रखे हैं वहां पर। मेरे से किसी से बात कर रहे थे कि कैसे फैसले करते हैं, मैंने कहा कि उस वक्त अल्लाह ताला ने उसी वक्त दिल में बात डाली, मैंने कहा कि जब किसी कौम का ज़वाल आता है, जब अल्लाह किसी कौम को खत्म करना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके अंदर से कॉमन सेंस को मार देता है। फिर खुद अल्लाह ताला उनके जरिए से ऐसे फैसले करवाता है कि वही फैसले उनके लिए क्या बन जाते हैं, वो वाले जाते हैं, वही फैसले उनके लिए वाले जाते हैं। वो आदमी जिनको इन्होंने कभी हज़रत मौलाना अली बिन हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जहां तक मेरे इल्म में है, उनके इंतकाल के ऊपर हरम के अंदर सलात गायबा में सलात जनाजा पढ़ी गई। इतना वक़ार था उनका वहां। यही मौलाना अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैह है जिनको काबतुल्लाह के अंदर वो ले गए थे, और वहां सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड उनको दिया गया था, करोड़ों रुपए का अवार्ड उनको दिया गया। आज वही अली मियां की किताबें उन्होंने बैठ कर दी। क्यों बैठ कर दी? क्योंकि इन्होंने दावत और तबलीग के ऊपर काफी किताबें लिखी, मालूम नहीं ऐसा। ये मौलाना इलियास, इसी हज़रत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना इलियास साहब उनकी दीनी दावत, ये मौलाना अली साहब की किताब है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी दीनी दावत, उन्होंने लिखा है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस काम को शुरू किया तो मैं कि मेवात जो राजस्थान का इलाका है, तो वो बेचारे बंधु गरीब लोगों को पकड़ते थे, कहा कि तबलीग जानते हो,
क्या है? वो कहते तबलीग। हमारे में सब लिखा है तबलीग। ये तबलीग क्या होती है? कहा कलीमा सुनाओ, कलीमा। तो कहा कि कलीमा तो मुझे नहीं आता है। तो कहा कि यही चीज तुम अपने कौम को जाकर समझाओ कि मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई है और मुझे कलीमा पढ़ना नहीं आता है। तो इसी कलीमे का सीखना का नाम तबलीग। मौलाना इलियास साहब ने लिखा, कहा कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा टेंट लगाते थे। राजस्थान जो अजमेर की तरफ जो रास्ता जाता है, अजमेर बहुत ही मशहूर है। ख़ैरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो वहाँ मज़ार है, तरह तरह के खुराफात होते हैं वहाँ पर। तो जब उर्स होता था, साल में एक बार उर्स होता है, वहाँ पर बहुत बड़ी देख बनी हुई है। जिन्होंने अगर नहीं देखी हो तो यूट्यूब के ऊपर जाके देख ले। हम तो 2-3 मरतबा जाके आए वहाँ पर। माशाल्लाह वहाँ जो सज्जादा नशीन लोग हैं, माशाल्लाह वहाँ जो जिनको लोग खादिम कहते हैं, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े खादिम हैं कि हम लोग वहाँ पर गए थे। तो वो 2 दिन वहाँ पर किसी की ज़ियारत नहीं करने देते, लेकिन हम किसी की तवस्सुस से गए थे। तो जो अंदर के आदमियों को जानता तो हमको जाने दिया था। कि वहाँ का जो माशाल्लाह सज्जादा नशीन लोग हैं, तो वहाँ के जो अदना दर्जे का जो खादिम होता है, बिल्कुल निचले वहाँ की कैटेगरीज होती है, नीचे से ऊपर जाती है वो। तो कहा कि जो निचले दर्जे का जो खादिम होता है, उसके पास कम से कम 2-3 फ्लैट रुपए के अंदर होते हैं। ऐसी खिदमत तो भाई सारे वालों को, नसीब लोगों को मिलती है। नहीं तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे वहाँ बाकायदा टेंट लगा देते। तो कहें कि यहाँ से ये, और अजीब बात तो मैंने हजरत मौलाना अली सर की किताब में ये पढ़ी, हजरत मौलाना साहब फरमाते हैं कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ये हुक्म दिया था कि सारे टेंट के अंदर हुक्का पानी का इंतजाम करो। हुक्का पानी, क्योंकि मेवाती लोग हुक्का बहुत पीते हैं और इनकी जमात भी होती है, हमने देखी है इनकी जमातें भी। तो जिस तरह भाई तालीम का वक्त फिक्स होता है, खाने का वक्त फिक्स होता है, तो इनको बाकायदा 10 मिनट वो इसकी उसको उनकी जबान में कहते हैं फजाइल फूकनी, यानी उनको 10 मिनट फूकने के लिए लेने पड़ते। सादा दिल लोग तो हजरत फरमाते थे कि उनके लिए हुक्का पानी का इंतजाम करो। और ये उर्स में जाने वाले लोग होते थे, उनका मकसद तो वहाँ अजमेर जाना होता था, लेकिन ये मेवाती लोगों को पकड़ के लाते थे। हमें कुछ नहीं चाहिए, कलमा सुनाओ बस कलमा सुनाओ। तो भाई ये तो ऐसी दावत है कि जिसके अंदर कलमा और इसमें से 3 चीजें तो वही आ जाती है। इसके अंदर सफाई है, सुथराई है, साफ है, यानी इसके अंदर कोई गुंजलत काम नहीं है। यानी इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है। हज़रत सैयद अबरा साहब दुलेबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है। हज़रत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया तो कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ठीक है, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, कामयाब हो जाओ। तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी का इंतखाब फरमाया, यानी ऐलान तो किया था, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ने किया था। सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ने किया था। हज़रत फरमाते हैं कि उस नबी का हर काम जो होता है वो हिकमतों से भरा होता है। बेपर्पस नबी का कोई काम नहीं होता है, नबी का हर काम पर्पसफुल होता है। तो कहा कि सफा पहाड़ी पर क्यों चढ़े? तो हज़रत मौलाना अबरा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इसलिए फरमाते कि दाई जो होता है उसके जो हौसले होने चाहिए, उसके जो इरादे होने चाहिए वो पहाड़ की तरह बुलंद होने चाहिए। उसको छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए, उसको अपने काम में लगना चाहिए। फिर अजीब बात हज़रत ने बयान फरमाई, हज़रत फरमाते थे कि सफा जो है ये सफाई से बना है, सुथराई से बना है। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा था कि ये जो दावत का जो काम है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी का इंतखाब किया, तो कहा कि उस काम के अंदर उस वक्त भी सफाई थी। वो पहाड़ अब भी है, उसका नाम अभी भी सफा है, और ये पहाड़ क़यामत तक रहेगा, उसका नाम सफा रहेगा। तो उसमें इशारा ये है कि उस काम में पहले भी सफाई थी, आज भी सफाई है, उस क़यामत तक उसमें सफाई रहने वाली। इसमें कोई एज पेज गुल्लक, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिकल इसमें तो सीधी बात होती है अल्लाह की तरफ। ये तो पॉलिटिकल लोगों का काम होता है कि भाई वो आते हैं और बात कुछ करते हैं, उनका इरादा कुछ होता है। एक पॉलिटिशियन गए किसी जगह के ऊपर वोट लेने के लिए, तो कहा कि आपने पहली मरतबा मुझे वोट दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालदार हो गया,
दूसरी مرتبہ ووٹ دیا تو میں نے اپنی ساری فیملی کو مالدار کر دیا. اب تیسری مرتبہ تمہاری باری. اگر تم کسی اور کو ووٹ دو گے تو وہ کیا کرے گا, تم کو 2 ٹرم کا انتظام کرنا پڑے گا جو آپ کی باری آئے گی. تو وہاں پر ایسی باتیں تو نہیں ہوتی ہے, جو کو صفائی والی بات ہے. اصل چیز یہ ہے مولانا عبدالرحیم صاحب نے فرمائی تھی اس دن, بہت ہی پتے کی بات فرمائی تھی کہ یہ لوگ پوری زندگی اسی کو محنت کرتے رہے, توحید بدعت توحید, یہ بدعت اس کو نکال دو, اس کو اڑا دو, اس کو ختم کر دو, اس کو ختم کر دو. انہوں نے اپنے عوام کے اوپر محنت اسی وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس دعوت نہیں تھی, تبلیغ نہیں تھی. یہ جو درس کے جو حلقے ہوتے ہیں, یہ جو دعوت, اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ان کی عوام کی تربیت ہوئی ہوتی, یہ لوگ درس کے حلقوں میں بیٹھے ہوتے, ان لوگوں کا تبلیغ جماعت سے واسطہ ہوتا, تو کل اگر مدینہ الرسول کے اندر کسی سلمان خان یا کسی بالی ووڈ والے کو لایا جاتا تو سب سے پہلے عوام کھڑی ہو جاتی, کہاں کہ اس کی ہم کو یہاں ضرورت نہیں. دیکھیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دروس میں بیٹھتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, اس کا کیا فائدہ, ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر کسی نے آج میں جلسے کے اندر دیکھ رہا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ جلسہ چل رہا تھا, اس نے کیمرہ نکالا, 2 آدمی اس کو غصے ہو گئے. یہ دیکھیے یہ کون سی چیز ہے, یہی چیزیں ان کو بتائیں کہ کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز شریعت کے دائرے میں آتی ہے, کون سی. چونکہ ان لوگوں کو انہوں نے ان چیزوں سے دور رکھا, بس اسی پر کام کرتے رہے کہ یہ بدعت, یہ غلط, وہ غلط, یہ غلط. عوام کی دلوں کی انہوں نے صفائی نہیں کی, تربیت دین کی باتیں ان کے سامنے نہیں آئی. آج ان کو بند کر کے رکھا تھا, سارے خرافات کے اندر سب لوگ لگے ہوئے, ان کو مزہ آ رہا ہے, ان کے پاس یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اللہ ساری امت کی حفاظت. تو یہ آخری حدیث تھی. اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو مجھے بھی تمام کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یہ یہاں پر کتاب التقویٰ, باب التقویٰ ختم ہو گیا, آگے باب الیقین فی التوکل شروع ہوگا. چلو معاف کرنا, روزانہ پرومس کرتا ہوں لیکن میں تھوڑی دعا دیتا ہوں. یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا, مولانا درمان یہ کتاب بھیجی ہے. پچھلے ہفتے میں نے 2 مسئلے کی تھوڑی سی اس کے اندر اس کا مذاکرہ کیا تھا, آج بھی 2 مسئلے پڑھ لیتے ہیں. بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے وقت سر ڈھانپنا اور ننگے پاؤں نہ ہونا مستحب ہے. انسان بیت الخلاء کے اندر جائے تو کیا کرے جائے, سر ڈھانپ کر جائے. سر کھلا رہتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, ویسے بھی تو شیطان کے رہنے کی جگہ ہے, تو وہ شیطان کیا کرے گا, برے خیالات انسان کے دماغ کے اوپر ڈالتا ہے. اس لیے کہا کہ بھائی سر کو کیا کر کے انسان کور کر کے جائے. ٹوائلٹ میں جائے تو سر کھلا رکھ کر نہ جائے. اسی طرح خالی پیٹ بھی نہ جائے. بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نجاست وغیرہ گری ہوتی ہے یا کوئی کچرا وغیرہ گرا ہوتا ہے, پھر انسان اس سے لے کر مسجد کے صفوں میں آ جائے گا, گھر کے اندر آ جائے گا, وہ بھی اس کو بھی کیا کر دے گا, وہ ناپاک کر دے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے سر ڈھانپ لیتے تھے اور جوتے کیا کر لیتے تھے, پہن لیتے تھے. پھر انسان کو اس کی کیا کرنی چاہیے, وہ کیا کرنی چاہیے. اچھا یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتا, اگر جگہ ایسی ہے جو قضاء حاجت کے لیے ہی بنائی گئی ہے جیسے بیت الخلاء, تو بہتر یہ ہے کہ وہاں داخل ہونے سے پہلے کیا کرے, دعا پڑھ لے. ایک تو اسپیسیفک ٹوائلٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, کہ بھائی وہاں ٹوائلٹ ہی ہو, تو وہاں تو بہتر یہ کیا کرے انسان باہر سے دعا پڑھ کر اندر داخل ہو. اور اگر بیت الخلاء صاف ستھرا ہو, جہاں گندگی نہ ہو جیسے فلش, تو ایسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد بھی سطر کھولنے سے پہلے زبان سے دعا پڑھنے کی گنجائش ہے. مثلا جیسے کہ ہمارے یہاں گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم کیا ہوتے ہیں, ساتھ میں ہوتے ہیں, بندہ وضو بھی وہی کرتا ہے. تو اگر وہاں پر سامنے گندگی نہیں ہے, فلش وغیرہ ہو چکا ہے, ٹوائلٹ کیا کلین ہو چکی ہے, تو کہہ رہے ہیں تو ایسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد بھی, کب, ابھی سطر نہیں کھولا ہے, اپنا سطر ٹراؤزر وغیرہ نہیں نکالے, کپڑے نہیں نکالے ہیں, تو کیا کر لے, زبان سے دعا پڑھنے کی گنجائش ہے, پڑھ سکتا ہے. اور اگر جگہ ایسی ہو جو قضاء حاجت کے لیے نہ بنائی گئی, قضاء حاجت کے لیے بنائی نہیں گئی, تو بہت سے مطلب انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کسی میدان کے اندر, فیلڈ کے اندر, جنگل کے اندر وغیرہ پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہو, میدان ہے, جنگل ہو, تو وہاں سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. سطر, کیونکہ وہاں دروازہ تو ہے نہیں, جب سطر کھولنے کا ارادہ کرے کیا کرے, دعا پڑھ لے. اگر اٹیچ باتھ روم ہو, جیسے کبھی اٹیچ باتھ روم ہو, تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جہاں قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے, اور دوسری وہ جگہ جہاں غسل کیا جاتا ہے یا واش بیسن لگایا جاتا ہے.
تو قضائے حاجت کی جگہ ہے وہاں پہنچنے سے پہلے دعا پڑھ لیں. اسی طرح غسل کی جگہ یا واش بیسن کی جگہ پر بھی وضو کی دعائیں یا بیت الخلاء کی دعا پڑھ سکتا ہے. یعنی واش بیسن وہاں ایسی جگہ میں لگا ہوا ہے وہاں پہ بیت الخلاء کی جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی داعی وضو سے پہلے کی دعا. تو کہا کہ انسان اگر ٹوائلٹ وغیرہ کی ہے تو ایسی جگہ کیا کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے.